السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور آج ہم لوگ بات کریں گے جاوید چودھری صاحب کے بارے میں۔ میں نے ان کے کالم بہت پہلے سے پڑھنے سٹارٹ کیے تھے، 2004 میں انفیکٹ میں نے ان کے کالم پڑھنے سٹارٹ کیے تھے، جب وہ جنگ اخبار کے لیے لکھا کرتے تھے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اب سبسکرائب کر لیں، اور بیل بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ آپ کے ایک کلک سے ہمیں کافی زیادہ کانفیڈنس ملتا ہے۔ شکریہ۔ تو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ میرا فرسٹ جو انٹروڈکشن ہوا تھا وہ 2004 میں ہوا تھا، جب میں نے اخبار پڑھنا سٹارٹ کیے تھے۔ تب اس ٹائم ان کے جنگ اخبار میں کالم آیا کرتے تھے، اور میں بہت جلدی ان سے امپریس ہونے لگا، کیونکہ ان کے جو کالم تھے وہ بہت ہی زبردست ہوتے تھے، زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرتے تھے، کافی اچھا پیغام دیا کرتے تھے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اگر میں آپ سے بات کروں، میں اب ان کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ظاہر ہے جب سے وہ ٹی وی پہ آئے ہیں ان کی کچھ چیزیں کافی کنٹروورشل ہیں، کچھ متنازع ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی چوائس ہے، وہ ان کی پرسنل چوائس ہے۔ ہر بندے کا اپنا پرسنل اوپینین ہوتا ہے، جس کا ہمیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا چاہیے اس بات پہ۔ تو میں بھی اس بات پہ ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان کی اپنی پرسنل اوپینین ہے، چاہے میں اس کو ایگری کرتا ہوں یا نہیں کرتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور ابھی بھی ان کے کافی ایسے کالم ہوتے ہیں جو مطلب کافی زبردست ہوتے ہیں، جس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو میں اس بات پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان کے کالمز کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، ہمیں زندگی کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ایک لفظ بھی سکھاتا ہے تو وہ آپ کا استاد ہے۔ تو میں اس ٹائم کافی زیادہ ان سے آبسیس ہو گیا تھا، تو میں نے باقاعدہ ایک اپنا رجسٹر مینٹین کیا ہوا تھا، جس میں میں نے ان کے کالم کو تمام کو کٹ کر کے لگایا ہوا تھا۔ یہ 90s کے جو جنریشن ہے وہی سمجھ سکتی ہے، آج کل کے جو جنریشن ہے وہ تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ آج کل تو سب کچھ نیٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی اپنا ہی ایک مزہ تھا، مطلب تب اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی، اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، تو یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی تھی۔ مجھے ان کے کافی زیادہ جو کالم ہیں، بہت زیادہ ناول جو کالم ہیں وہ پسند ہیں، جو کسی ایک کو میں اپنا بیسٹ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان میں بہت زبردست چیزیں ہیں۔ اور جیسے کہ ان میں ان کی رائٹ اپروچ ہے، کاش انصاف 58 دھوپ ہوتا، ترقی کا اسٹیڈیم۔ لیکن ان کا ایک کالم ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس ٹائم مجھے اس نے کافی زیادہ ایموشنل کر دیا تھا۔ ہم چلتے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رجسٹر مجھے کافی ٹائم کے بعد ملا ہے، اور اس کو دیکھ کے مجھے کافی زیادہ پرانی یادیں جو ہیں وہ پھر سے واپس آ گئی ہیں۔ جب میں یہ کام کیا کرتا تھا اس ٹائم کچھ میں ایموشنلی کافی زیادہ سٹریس تھا، کافی کچھ ایسے ایشوز چل رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے میں نے کچھ کوٹیشن بھی لکھی ہوئی تھی ڈیفرنٹ ناول سے، کیونکہ ناول پڑھنے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے، اور مجھے کوئی بھی جو کوٹیشن اچھی لگتی تھی میں اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر دیتا تھا۔ وہ جو کالم تھا، ہاں یہ کالم تھا، اس کے نیچے بلکہ میں مینشن بھی کیا، وہ بیسٹ ہے۔ یہ 8 بجے کا نام سے ایک کالم ہے، اور یہ بہت زبردست ہے۔ اس کا میں آپ کو ویسے مختصراً بتا دیتا ہوں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلینک میں یہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کی ملاقات ایک بابا جی کے ساتھ ہوتی ہے۔
बाबा जी की जो बीवी होती है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसको अल्जाइमा होता है, जो मतलब वो उसकी याददाश्त चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद जो बाबा जी हैं वो हर सुबह के में आते हैं 8 बजे, आके अपनी बेगम को नाश्ता करवाते हैं, इवन कि उनकी बेगम पहचानती नहीं है। तो हम एक दफ़ा उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं इनिशियल नहीं करूँगा वरना ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो कॉलम स्टार्ट होता है, ये 29 अप्रैल 2007 को लिखा गया है, संडे का दिन था, मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है। तो कॉलम स्टार्ट होता है, मैं बताता हूँ सच्ची मोहब्बत क्या होती है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर हमारी तरफ देखा और काफ़ी के मग से खेलने लगा। हम गौर से इसकी बात सुनने लगे। वो गोया हुआ, मैं एक दिन क्लिनिक में बैठा था, ये सुबह के 7:30 बजे थे। एक बूढ़ा मरीज भागता हुआ क्लिनिक में दाखिल हुआ। इसके माथे पे पसीना था, सांस धोंकी की तरह चल रही थी और वो बार बार दिल पर हाथ रखता था। मेरा स्टाफ तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। बूढ़े की उम्र 80 बरस से जायद थी, लेकिन वो उसके बावजूद चलने फिरने की पोजीशन में था। वो नर्स और वार्ड बॉय से बहस करने लगा। मैं दफ्तर के शीशे से उन्हें उलझते हुए देखने लगा। ज़रा देर बाद वार्ड बॉय मेरे पास आ गया। मैंने इस वक्त अखबार पढ़ा था। मैंने अखबार एक तरफ रखा और इस तरफ हामिया नज़रों से इसे देखने लगा। वार्ड बॉय ने बताया, बाबा जी के अंगूठे पर चोट लगी थी। हमने 3 हफ्ते पहले इनके टांके लगा दिए थे, वो टांके खुलवाने आए हैं। मैंने घड़ी की तरफ देखा और वार्ड बॉय से कहा, बाबा जी से कहो मैं 8 बजे काम शुरू करूँगा, वो आधा घंटा इंतज़ार कर लें, मैं सबसे पहले इनके टांके खोलूँगा। वार्ड बॉय गया और फ़ौरन वापस आ गया। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा। वो घबरा कर बोला, बाबा जी को बहुत जल्दी है, उन्होंने 8 बजे कहीं पहुंचना है, वो हमारी मन्नत कर रहे हैं। मुझे बाबा जी और वार्ड बॉय दोनों पर गुस्सा आ गया। मैंने अखबार मेज़ पर पटका और शीशे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाबा जी दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे। इनकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। मैंने उन्हें डांटने की कोशिश की, लेकिन फिर इनकी हालत देखकर जब्त कर गया। मैंने उन्हें बताया, क्लिनिक का वक्त 8 बजे शुरू होता है, मैं सिर्फ अखबार पढ़ने के लिए आधा घंटा पहले आ जाता हूँ। आप इत्मीनान से बैठ जाएं, मैं जो ही 8 बजेंगे मैं सबसे पहले आपको देखूंगा। बाबा जी ने घड़ी की तरफ देखा और लजाजत भरी आवाज़ में बोले, बेटा जी, मैंने 8 बजे दूसरे अस्पताल में पहुंचना है, मैं लेट हो रहा हूँ। अगर मैं 5 मिनट में यहाँ से ना निकला तो मैं वक्त पर वहाँ नहीं पहुँच सकूँगा, इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्लीज़ मेरे ऊपर मेहरबानी करें। बाबा जी ने इसके साथ ही मेरी ठोड़ी पकड़ ली। मेरा गुस्सा छत को छूने लगा, लेकिन मैं बाबा जी की उम्र देखकर चुप हो गया। मैं उन्हें क्लिनिक में लाया, ट्रे मंगवाई और एहतियात से इनके टांके खोलने लगा। बाबा जी इस सारे अमल के दौरान बार बार घड़ी देखते थे। डॉक्टर का इसने लंबा सांस लिया और दोबारा बोला। मैंने टांके खोलते हुए बाबा जी से पूछा, आपने कहाँ जाना है? बाबा जी ने बताया, फलां अस्पताल में इनकी बीवी दाखिल है और वो हर सूरत 8 बजे इसके पास पहुंचना चाहते हैं। मैंने पूछा, खुदा न ख्वास्ता आपकी बेगम का ऑपरेशन तो नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं रोज़ सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंचकर इसे नाश्ता कराता हूँ। मुझे इनके जवाब ने हैरान कर दिया। मैंने पूछा, क्यों? बाबा जी बोले, वो 5 साल से अस्पताल में हैं और मैं पिछले 5 साल से रोज़ 8 बजे इसके अस्पताल पहुंचता हूं और इसे अपने हाथों से नाश्ता कराता हूं। मैंने हैरत से पूछा, 5 साल में आप कभी लेट नहीं हुए? बाबा जी ने इनकार में सर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, आंधी हो, तूफान हो, सैलाब, बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी, में कभी लेट नहीं हुआ। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? बाबा जी मुस्कुराए, मैं इसका कर्ज अदा कर रहा हूँ। हमने 50 बरस इकट्ठे गुजारे हैं। इन 50 बरसों में इसने मुझे रोजाना 8 बजे नाश्ता कराया था। हमारे घर में नौकरों और खादमों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सैलाब हो, तूफान हो या आंधी, वो 6:30 बजे जागती थी, अपने हाथों से नाश्ता बनाती थी और ठीक 8 बजे जब मैं ऊपर से नीचे आता था तो वो मेज़ पर नाश्ता लगाकर मेरा इंतज़ार करती थी। हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करते थे। इसने 50 बरसों में कभी इस मामूल में तातल नहीं आने दिया। वो मेरे नाश्ते की वजह से कभी मेके नहीं गई। 5 बरस पहले वो अस्पताल में दाखिल हुई तो ये ड्यूटी मैंने संभाल ली। अब मैं रोजाना 6:30 बजे जागता हूँ और 8 बजे से पहले
इसके कमरे में पहुंच जाता हूँ। मैं अपने और इसके लिए नाश्ता बनाता हूँ और फिर हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करते हैं। मेरी हैरत परेशानी में दाखिल हो गई और मैंने बाबा जी से पूछा, आपकी बेगम को क्या बीमारी है? बाबा जी ने हसरत से मेरी तरफ देखा और सिसकी लेकर बोले, इनकी यादाश्त खत्म हो गई है। वो अपना माजी हाल और मुस्तकबिल भूल गई हैं। उन्हें अपना नाम तक याद नहीं। वो दुनिया के किसी शख्स को नहीं पहचानती। वो बोलना तक छोड़ चुकी हैं। मैं उन्हें पिछले 1 साल से किसी जबान का कोई लफ्ज़ याद नहीं। डॉक्टर उन्हें जेली पर्सन कहते हैं। डॉक्टर रुका, इसने लंबी सांस ली और दोबारा गोया हुआ। मैंने बाबा जी से कहा, इसका मतलब है आपकी बेगम को अल्जाइमर है। बाबा जी ने सर हिला के तस्दीक कर दी। मैंने बाबा जी से पूछा, क्या वो आपको पहचानती हैं? बाबा जी ने फौरन इनकार में सर हिलाया और दुखी आवाज में बोले, वो पिछले 5 साल से मुझे नहीं पहचान रही। वो ये जानती ही नहीं मैं कौन हूँ और रोज सुबह 8 बजे उसके पास क्यों आ जाता हूँ। डॉक्टर ने रुककर हमारी तरफ देखा और उसने कहानी के सिरे जोड़ते हुए बताया, बाबा जी के टांके उतर चुके थे। मैंने स्पिरिट से इनका जख्म साफ किया, उस पर पाउडर छिड़का, उनसे अर्ज किया, आप हमारी तरफ से फारिग हैं, आप जा सकते हैं। बाबा जी ने अपनी छड़ी उठाई और बाहर की तरफ चल पड़े। मैं इनके साथ साथ चलने लगा। जब वो बाहर के दरवाजे पर पहुंचे तो मैं इनसे आखिरी सवाल पूछा। मैंने इनसे पूछा, जब आपकी बेगम आपको पहचानती ही नहीं, जब इनकी नज़र में वार्ड बॉय आप में कोई फ़र्क नहीं, तो आप रोज़ाना 8 बजे क्यों तकलीफ़ क्यों करते हैं? बाबा जी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, लेकिन मैं इसे पहचानता हूँ। मैं ये जानता हूँ वो कौन है और मेरी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत, इसकी क्या हैसियत है। वो रुके और दोबारा बोले, यादाश्त इसकी ख़त्म हुई है, मेरी नहीं। लिहाजा वो आखिरी सांस तक मेरी बीवी है और मैं इसी तरह इसकी खिदमत करता रहूँगा। बाबा जी रुके और दोबारा बोले, मोहब्बत का ताल्लुक यादाश्त से नहीं होता, इसका जिस्म और दिमाग से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। ये दिल में पैदा होती है और दिल की आखिरी धड़कन तक कायम रहती है। लिहाजा अगर आपका साथी आपको नहीं पहचानता तो आपके दिल में इसकी मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। वो रुके, उन्होंने सांस लिया और दोबारा बोले, मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर इसकी जगह मैं होता क्या वो मुझे फरामोश कर देती? नहीं, वो मुझे कभी भी फरामोश ना करती। वो ठीक 8 बजे नाश्ते की ट्रे लेकर रोज़ मेरे सहारे खड़ी हो जाती। लिहाजा अगर मेरी यादाश्त जाने से इसकी मोहब्बत कम नहीं हो सकती तो मेरी मोहब्बत कैसे कम हो सकती है? बाबा जी क्लिनिक की सीढ़ियाँ उतरे। बाहर टैक्सी खड़ी थी। वो टैक्सी की अगली सीट पर बैठे। उन्होंने खिड़की से हाथ निकाल कर मुझे विश किया और वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे इस लम्हे महसूस हुआ सच्ची मोहब्बत क्या होती है। डॉक्टर का इसने आंसू पहुँचे और हमारी तरफ देख कर बोले, इसके बाद वो बाबा जी मुझे कभी नहीं मिले, लेकिन जो ही 8 बजते हैं मुझे फ़ौरन वो याद आ जाते हैं और मैं मोहब्बत के तस्व्वुर में गुम हो जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में 8 बजे का लम्हा हमेशा मोहब्बत लेकर आता है और मैं अपने साथ अहद करता हूँ और मेरी बीवी मुझसे जितनी मोहब्बत करती है मैं इसे ये मोहब्बत लौटा कर इस दुनिया से रुखसत होऊंगा। मैं इसका कर्ज चुकाए बगैर दुनिया से नहीं जाऊंगा। डॉक्टर खामोश हुआ तो हम सब की आंखें बोलने लगी और हम उन्हें खामोश करने के लिए टिश्यू तलाश करने लगे। तो दोस्तों, इस कॉलम में बेसिकली सच्ची मोहब्बत की एक छोटी सी डेफिनेशन बयान की गई है, एक छोटे से वाक़या है, लेकिन वाकई बहुत सच्ची बात है और समझने वाली बात है कि अगर आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको पहचानता है कि नहीं पहचानता, किसी बीमारी के चक्कर में, हादसे में, और कभी भी अपने मोहब्बत करने वालों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उनको अपने साथ रखना चाहिए, हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। तो अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक और कमेंट कर दें और अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार करें कि आप सच्ची मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं। इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।